جب نیشنل کانفرنس کا دور آیا تب بھی لوگوں کو انہوں نے پٹوایا, تب بھی ہم دے, لیکن جب بی جے پی والوں کا دور آیا تو انہوں نے کون سی کمی کی, انہوں نے اس سے بدتر حالت کی. جو ایریا ایڈجائننگ کشتواڑ کے ساتھ تھے اس کو انہوں نے وہاں سے ہٹا کر دوسرے کانسٹیچوئنسی میں ڈالا, اور انہوں نے اس بار یہ کوشش کی کہ جو 5 سے 6 ہزار ووٹر جو تھا وہ انہوں نے ایک طرف سے ایک قسم کی لابی کو اپنی طرف لے لیا. فی الحال تو وہ سیاست کر رہے ہیں جس سیاست پہ انہوں نے ووٹ حاصل کیا ہے. وہ ان لوگوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں جن لوگوں نے ان کو ووٹ, انہوں نے کیونکہ وہ مندر اور مسجد کی سیاست کر کے آگے بڑھ چکے ہیں, اب وہ اس میں اپنا نام پہلے اپنا آگے لے رہے ہیں. اور دوسری بات جو ہے, جو بی جے پی جس مقصد میں کامیاب ہو گئے, انہوں نے اس کو ہندو مسلم کی سیاست میں کر کے اور پولرائز کر کے اس سارے گیم کو اپنی طرف لے لیا. اور اس کی ایک بیسک وجہ یہی رہی کہ ووٹر جو ہے ایک طرفہ چلا گیا, اور اس سے یہ جو ہے یہاں کی بی جے پی جو ہے کامیاب ہو چکی ہے. کسی مسلمان کو مارا گیا تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ اس کی کانسٹیچوئنسی کا نہیں ہے. بہرحال جو ہمارے لیڈر چنے گئے ہیں, جن کو لوگوں نے اعتماد دیا ہے, ان لوگوں کو بھی آگے آنا چاہیے اور اس چیز کی ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ بے گناہ بے تقصیر اگر لوگوں کو مارا گیا, پھر ان کو آرمی بجائے ہاسپٹل کے بجائے آرمی کیمپوں میں ان کا علاج کیا گیا. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کشتواڑ میں پانی کا ایک مسئلہ ہے, پانی کہیں موجود نہیں. کشتواڑ چاروں طرف سے دھوئیں کی وجہ سے بالکل ڈک چکا ہے, گھرا ہوا ہے. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹرسٹ ایشیا. میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد نائک. میرے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے موجود ہیں پی ڈی پی ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ کشتواڑ اشتیاق احمد واضح صاحب. یہاں پر ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ حال ہی میں جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات مکمل ہو چکے ہیں. جموں کشمیر میں 10 سال کے بعد اسمبلی انتخابات ہوئے اور لوگوں نے اپنے امیدوار جو ہے وہ چن کر اسمبلی میں بھیجے. کشتواڑ سے بی جے پی نے جو ہے جیت حاصل کی ہے. ہمارے ساتھ اشتیاق احمد واضح صاحب بات کرنے کے لیے موجود ہیں. واضح صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. شکریہ. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو آپ نے آج ہمیں اس لائق سمجھا کہ ہم لوگوں کے جو مدعے وغیرہ جو ہے آپ کی بات ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں. واضح صاحب آپ مجھے بتائیں, اسمبلی انتخابات مکمل ہو چکے ہیں جموں کشمیر میں, اب امیدوار بھی جو ہے اسمبلی میں پہنچ چکے ہیں, لوگوں کا کام یہی تھا, لیکن سننے میں یہ آ رہا ہے کہ کشتواڑ میں بہت سے ایسے مسئلے مسائل ہیں جن پر ابھی بھی توجہ نہیں دی جا رہی. یہاں پر بے روزگاری ہے, یہاں کے نوجوانوں کو پروجیکٹوں میں لگایا نہیں جا رہا ہے. کیا کچھ پورے مسائل سے تھوڑا بتائیے ذرا ہمیں. دیکھیے, سب سے بڑا اہم اور جو بڑا مسئلہ اس وقت جموں کشمیر میں ہے وہ اس پچھلے جو 5 سالوں میں یہاں پر گورنر راج رہا. 2019 کے بعد یہاں پر اکثر لوگوں نے یہ دیکھا کہ جو یہاں پر سب سے پہلے بات یا پورے جموں کشمیر کی اگر پہلے ہم بات کریں تو بے روزگاری کا ایک بہت بڑا مسئلہ جموں کشمیر میں رہا. اگر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہمارے ڈسٹرکٹ کشتواڑ میں اس وقت لگ بھگ ہمارے 7 پروجیکٹ جو ہیں وہ اس وقت زیر تعمیر ہیں, جن کا کام زور و شد سے چل رہا ہے. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارا جو لوکل یہاں کا یوتھ ہے وہ اس وقت بے روزگاری سے چل کر اس وقت کہیں نہ کہیں ذہنی توازن کا پریشان ہو چکا ہے, شکار ہو چکا ہے. اس کے پیچھے یہ بھی لاجک ہے کہ جو نوجوان اس وقت پڑھا لکھا ہوا پچھلے 5 سے 10 سالوں سے جو ان کو روزگار نہیں ملا, تو وہ نوجوان اس وقت اور ہی کچھ باقی چیزوں کے پیچھے لگ گئے ہیں. جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ اس وقت جو ڈرگس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, بہت سارے ہمارے نوجوان بچیاں ہیں جو اس وقت ڈرگس کے پیچھے ہیں, وہ بھی اس ذہنی توازن کا شکار ہو چکے ہیں. کیونکہ بے روزگاری ایک جو ہے وہ بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے. جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس اس سے قبل ایک ڈولہستی پروجیکٹ جب بنا تو یہاں پر جے پرکاش کمپنی نے کام کیا اور لگ بھگ ہمارا 10,000 سے زائد نوجوان ہمارا جو ہے ان پروجیکٹوں میں کام کر رہا تھا. آج بھی ہمارے لگ بھگ ہمارے جو 4,000 میگا واٹ بجلی پاور پروجیکٹ ہمارے یہاں تیار ہو رہے ہیں جی, اپنے پورے کشتواڑ میں, جتنے ڈسٹرکٹ کشتواڑ میں, ارشوائل کشتواڑ میں 4,000 میگا واٹ بجلی تیار ہونے کو جا رہی ہے. لیکن بدقسمتی کا مقام یہ ہے کہ ہمارا جو یہاں کا یوتھ ہے وہ کہیں بھی آبزرو نہیں ہے, وہ کہیں بھی آبزرو نہیں ہے. میرا آپ سے سوال رہے گا کہ یہاں پر بی جے پی نے جموں کشمیر کے لوگوں کو بہت ستایا, بے روزگاری بہت تھی, نوجوانوں کو روزگار نہیں دیا جا رہا تھا, بہت پریشان کیا گیا, کبھی کبھار سمارٹ میٹر لگا دیے, ٹیکس لگا دیے, بہت سی چیزیں ہوئی. لیکن جب الیکشن ہوئے واضح صاحب, آپ مجھے بتائیے کہ کشتواڑ کے اندر پھر سے بی جے پی جیتنے میں کامیاب کیسے ہوئی؟ دیکھیں, وہ تو یہاں کشتواڑ کا ہر ایک
मर्द और जन इस बात से वाकिफ है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले जो 5 सालों में यहाँ पर काम किया, उसमें उन्होंने तरह तरह के अपने हथकंडे जो है उन्होंने आजमाए। उसमें सबसे बड़ा उन्होंने जो डिलिमिटेशन का एक मसला किया, डिलिमिटेशन में उन्होंने इस तरह की हदबंदी की कि जो हमारा यहाँ हार्ट ऑफ द सिटी जो है, जैसे हमारे पास संग्राम बाटा, मता, हटा वगैरह जो एरिया एडजॉइनिंग किश्तवाड़ के साथ थे, उसको उन्होंने वहां से हटाकर दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में डाला। और उन्होंने इस बार ये कोशिश की कि जो 5 से 6 हजार वोटर जो था वो उन्होंने एक तरफ से एक किस्म की लॉबी को अपनी तरफ ले लिया। और दूसरी बात जो है, जो बीजेपी जिस मकसद में कामयाब हो गए, उन्होंने इसको हिंदू मुस्लिम की सियासत में करके और पोलराइज करके इस सारे गेम को अपनी तरफ ले लिया। और उसकी एक बेसिक वजह यही रही कि वोटर जो है एक तरफा चला गया और उससे यह है जो है यहाँ की बीजेपी जो है कामयाब हो चुकी है। वाजा साहब, आप मुझे बताइए कि यहाँ पर यह भी बताया गया कि यहाँ पर जो है कम्युनल जो कैंपेनिंग है वो चलाएगी शगुन परिहार की तरफ से, लेकिन हमने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने दौर में लोगों को सताया है। जब जो सब यहाँ मिनिस्टर थे वो भी गरीबों को सताते थे, यहाँ पर हालात बेहतर नहीं होते, इसलिए लोगों ने चेंज किया। क्या ये हकीकत है? नहीं, ये तो कहने की बातें हैं ना कि अगर ये चीजें हम देखेंगे कि एक दूसरे के ऊपर तो ये दोनों पार्टियां एलिगेशन लगा रही हैं। हम अगर अपनी बात करें तो मैं यही कहूंगा कि ना उन्होंने कुछ काम किया ना इन्होंने कुछ काम किया। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस का दौर आया तब भी लोगों को उन्होंने पिटवाया, तब भी हम देखे हैं। लेकिन जब बीजेपी वालों का दौर आया तो उन्होंने कौन सी कमी की, उन्होंने उससे बदतर हालत की। वो सिर्फ हमारी पार्टी के कायद मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब थे जिन्होंने हीलिंग टच पॉलिसी लाई, लोगों को जेलों से निकाला। उन्होंने, आप देखेंगे महबूबा मुफ्ती साहिबा ने अपने दौरे इक्तदार में लगभग कश्मीर में जो हमारे पत्थरबाजी में जो हमारे लड़के मुलविस वहां पर थे, लगभग उन्होंने कश्मीरियों को वहां 11,500 FIR वापस ले ली। उन्होंने जॉब पॉलिसी लाई थी। मुफ्ती साहब ने भी जब यहाँ पर उन्होंने 2008 में एज ए चीफ मिनिस्टर बने तो उस वक्त की अगर हम बात करें तो वो आप देखेंगे कि उस वक्त रहबर तालीम, रहबर सेहत, पुलिस में SPOs की भर्ती, वो जो चीजें थी वो हीलिंग टच पॉलिसीज थी। अब ये लोग अगर एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाएंगे तो दोनों पार्टियों ने कोई ऐसा कारनामा कुछ नहीं किया कि जिससे लोग इनको शाबाशी दे। वाजा साहब, आप मुझे बताइए कि किश्तवाड़ की अगर हम बात करें, हाल ही में कुछ नौजवानों को मारा पीटा गया। महबूबा मुफ्ती जी ने ट्वीट करके कहा कि ये बड़ा अफसोसनाक है, जम्मू कश्मीर की हुकूमत इस पर चुप है। सिक्योरिटी फोर्स ने जिस तरह से कुछ यहाँ के लोकल्स को उठाकर मारा, आपने भी वो तस्वीर देखी होंगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या हकीकत थी उसमें और क्या कुछ हो रहा है किश्तवाड़ में? देखो, ये वो चीजें हैं जो इस वक्त भी अगर हम देखेंगे कि ये सबसे पहले यहाँ के जो हमारे MLA साहिबान हैं, ख्वाह हमारे इंदरवाल के हैं, किश्तवाड़ के हैं, पाडर के हैं, अब लोगों का तहफ़्फ़ुज़ उनके हाथ में था। उन लोगों को इस चीज के ऊपर देखना था कि हमें अपने जिले में जितने भी, आप देखेंगे किश्तवाड़ एक ऐसी वाहिद जगह है जिस जिले में 3 MLA हैं इस वक्त, और हम देख रहे हैं कि इस वक्त सबसे ज्यादा जो है परेशान हाल अगर कोई इलाका है वो हमारा जिला किश्तवाड़ है। अगर जिस वक्त हम आजकल जो देख रहे हैं कि आप जो जिस चीज की बात कर रहे हैं कि क्वाट में जो ये इस किस्म का हादसा पेश आया, हम कहते हैं कि उन गरीब लोगों का क्या कसूर था जिन लोगों को बेगुनाह बेतकसीर पीटा गया। हमने भी ये बात उठाई, हमारी पार्टी के कायद सदर महबूबा जी ने पहले इस चीज पे ट्वीट किया, फिर हमारे स्टेट सेक्रेटरी हमारे शेख नासिर साहब ने भी इस पे बात की। लेकिन देखना है कि जिला इंतजामिया और खुसूसन हमारी रियासती सरकार इन चीजों पे चुप्पी क्यों बांधी? बीजेपी लीडर किश्तवाड़ के खासकर जो 2 जीते हुए यहाँ पर नेशनल कांफ्रेंस, वो खामोश क्यों है इस मसले पर? देखिए, वही तो हम बात कर रहे हैं ना कि अब लोगों ने वो तो आप किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के तो MLA तो है नहीं, वो तो पूरे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में हर एक अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का, तो उनको अब ये चीजें देखनी पड़ेंगी। अगर किसी मुसलमान को मारा गया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी का नहीं है। बहरहाल जो हमारे लीडर चुने गए हैं, जिनको लोगों ने एतमाद दिया है, उन लोगों को भी आगे आना चाहिए और इस चीज की उनको भी देखना चाहिए कि क्या वजह है कि बेगुनाह बेतकसीर अगर लोगों को मारा गया, फिर उनको आर्मी बजाय हॉस्पिटल के बजाय आर्मी कैंपों में उनका इलाज किया गया। तो ये मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं इसके पीछे ये नजर आ रहा है कि लोगों को बेगुनाह और बेतकसीर परेशान किया जा रहा है। तो हम समझते हैं कि इस चीज के लिए हम रियासती सरकार से, गवर्नर इंतजामिया से भी गुजारिश करेंगे कि
इस चीज की पूरी इंक्वायरी की जाए। अगर वो लोग, हम कहेंगे कि अगर वो लोग बेगुनाह हैं तो उनको इंसाफ दिया जाए, अगर बेगुनाह नहीं है, अगर उनके ऊपर कुछ ऐसा इस किस्म का एलिगेशन है तो हम कहेंगे उनको सजा मिलनी चाहिए। वाजा साहब, आप मुझे बताइए कि किश्तवाड़ की अगर हम बात करें, जिस तरह से यहाँ पर अभी सूरत-ए-हाल चल रहे हैं, क्या मुस्तकबिल नजर आ रहा है? 5 साल जो है एक एमएलए को मिले हैं, किसी मसले पर बात नहीं हो रही, लोग परेशान हैं, क्या मुस्तकबिल नजर आ रहा है? 5 सालों के अंदर लोगों को क्या क्या झेलना पड़ेगा? देखो, मैं आपको एक चीज बता दूं कि जिस तरीके का इनका व्यवहार है, जो हमारे लोग इस वक्त असेंबली में बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं कि इस वक्त मैंने आपसे पहले ही बात ये कही कि बेरोजगारी का मसला सबसे अहम है, और उसके बाद दूसरा मसला जो हमारा है, इस वक्त हमारे बच्चे हैं जो है वो ड्रग्स एडिक्टेड हो गए हैं। बीजेपी के किसी लीडर ने असेंबली में बेरोजगारी की बात की नहीं। किश्तवाड़ के जो 2 एमएलए थे, एक को तो लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया गया, किसी ने बेरोजगारी की बात नहीं की। फिलहाल तो वो सियासत कर रहे हैं जिस सियासत पे उन्होंने वोट हासिल किया है। वो उन लोगों को खुश करना चाहते हैं जिन लोगों ने उनको वोट, उन्होंने, क्योंकि वो मंदिर और मस्जिद की सियासत करके आगे बढ़ चुके हैं, अब वो उसमें अपना नाम पहले अपना आगे ले रहे हैं। सबसे पहली बात उनको ये करनी चाहिए थी कि जिस मुद्दे और मकसद के लिए लोगों के काम जो जमीनी सतह पे है, आज आप देख रहे हैं कि किश्तवाड़ में पानी का मसला है, पानी कहीं मौजूद नहीं। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जो हमारा एनवायरमेंटल, इस वक्त आप देखेंगे आज नवंबर का महीना है, बारिशें कहीं नहीं है, किश्तवाड़ चारों तरफ से धुएं की वजह से बिल्कुल ढक चुका है, घिरा हुआ है। लेकिन देखना यह है कि हमारे यहाँ पर जो इस वक्त प्रोजेक्ट बन रहे हैं उसमें हमने देखा कि किसी किस्म की भी एनवायरमेंटल कोई बात नहीं, एनवायरमेंट की कोई बात नहीं हो रही है, बेरोजगारी की बात नहीं हो रही, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन के सामने आ भी रही हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन भी इन चीजों में मुलविस है, जो इन चीजों को देखकर अनदेखा कर रही है। आखिर में आपसे जानना चाहूंगा वाजा साहब, मैं कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात मुकम्मल हो चुके हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी, पीडीपी में क्या कमजोरियां थी जो आपको लगता है कि लोगों ने इस बार जो है पीडीपी को वोट नहीं किया? देखो, ये लोगों ने जो इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैंडेट दिया, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों के साथ वो वादे किए हैं जो अनएक्सपेक्टेड है, जैसे कि उन्होंने बिजली का कहा, उन्होंने गैस सिलेंडर की बात की, उन्होंने यहाँ पर ये जो रिजर्वेशन की बात की, 1 लाख नौकरियों की बात की, तो लोगों ने इनको इसलिए एतमाद दिया कि हम इनको देख लें कि ये अगले 5 सालों में क्या करते हैं। लेकिन हमें ये नजर आ रहा है कि जो अभी हम देख रहे हैं कि पीछे जो असेंबली में इस वक्त भी इन्होंने बात की, दफा 370 की बात की, इन्होंने इस वक्त आर्जी तौर पे वहां पर एक रेजोल्यूशन लाया जिस रेजोल्यूशन का न सर है न टांगे हैं। हालांकि हम देख रहे हैं कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं वहीद पारा की वजह से वो रेजोल्यूशन लाया गया। ओबियसली वहीद पारा ने तो जो रेजोल्यूशन लाया वो तो मैं कह रहा हूँ कि वो पीडीपी की देन है कि दफा 370 पे उन्होंने रेजोल्यूशन लाया। लेकिन देखना है कि जब दूसरे दिन उस पे रेजोल्यूशन को उनके सामने पेश किया गया, जो कि डिप्टी सीएम साहब ने पेश किया, लेकिन उसमें हमने देखा कि उस रेजोल्यूशन में आप यकीन करेंगे कि उसकी जो तायीद की, कि उसको वेलकम किया, तो वो आप देख रहे हैं कि वो तो बीजेपी के जो राष्ट्रीय इंचार्ज थे उन्होंने उस पर वेलकम किया। तो कहां से उस रेजोल्यूशन में उतना दम था? जो रेजोल्यूशन लोगों को गुमराह कर रही है लोगों को, जबकि जो रेजोल्यूशन लाना चाहिए था जिसमें दफा 370 की बात होती, 35A की बात होती और लोगों के रोजगार की बात होती, बाकी चीजें थी जो जिसमें जो दफा 370 का हकीकी मकसद था वो उसमें कहीं नहीं था। हालांकि एक तरफ से उमर अब्दुल्ला साहब ये कह रहे हैं कि हम रियासत में राष्ट्रीय दर्जा वापस लाने के लिए सेंटर के साथ बात करेंगे, तो दूसरी तरफ से जब उन्होंने रेजोल्यूशन लाया और रेजोल्यूशन लाने के बाद फौरन उन्होंने ये कहा कि दफा 370 और 35 लोगों को भूल जाना चाहिए। तो ये चीज आया कर देती है कि इन लोगों के कहने और करने में कितना फर्क है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इश्तियाक अहमद वाजा साहब, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट किश्तवाड़, पीडीपी से हैं। इनने तमाम तर मसलों पर जो है वो बातचीत की। किश्तवाड़ में बेरोजगारी है, लोग परेशान हैं, ये आने वक्त में देखना ये जरूर होगा कि बीजेपी जो है लोगों के एतमाद में कितना खरा होता है। आपको क्या कुछ लगता है? आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।